हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार और आज से मैं बायोलॉजी का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझाऊंगा और पढ़ के भी बताऊंगा। हाईलाइट भी करूंगा, पढ़ूंगा भी और समझाऊंगा भी आपको। ठीक है। ये यूनिट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है। इसमें तीन चैप्टर है मेनली। चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10। चैप्टर 8 है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा है बायोमोलिक्यूल। चैप्टर 9 है बायोमोलिक्यूल। फिर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। डिस्क्रिप्शन है उसमें, वो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। Biology is the study of living organism. Biology is the study of living organism. The detailed description of their form and appearance of only brought out diversity. It is the cell theory and emphasize the unit underlining the diversity of form. That is cellular organization of all life form, a description of cell structure, and cell growth by division is given in the chapter comprising this unit. हाईलाइट वाला चुनते हैं पहले। कलर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। कहाँ थे हम लोग? यहाँ सेल थ्योरी आल्सो क्रिएट a sense of mystery around living phenomena, that is physiological and behavioral process. This mystery was requirement of integrity. This mystery जो है requirement of integrity of cellular organization for living phenomena to be demonstrated or observed. In studying and understanding the physiological and behavioral process, one can take a physiochemical approach, use cell-free system to investigate. The approach enables us to describe the various processes in molecular terms. This approach is stabilized by analysis of living tissue for element compound. It will tell us what type of organic compound are present in living organism. In next stage, one can ask the question, what are these compounds doing inside a cell? And in what way they carry out their gross physiological process like digestion, excretion, memory, defense, recognition. Another word be answer this question. What is the molecular basis of all physiological process? It can also explain the abnormal process that occur during any disease condition. The physiochemical approach to a study and understanding living organism is called reductionist biology. Physiochemical approach to study and understand living organism is called reductionist biology. The concept of technique of physics and chemistry are applied to understand biology. In chapter 9, the unit brief description of biomolecule are provided. ठीक है। इसमें एक साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, उनका नाम है जीएन रामचंद्रन। जीएन रामचंद्रन है। ठीक है, हम बड़ा करते हैं, जूम करते हैं। ठीक है, जीएन रामचंद्रन 1922 से 2001। ठीक है। जीएन रामचंद्रन एक आउटस्टैंडिंग फिगर है इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के फील्ड में, प्रोटीन स्ट्रक्चर के फील्ड में आउटस्टैंडिंग फिगर है, मतलब बहुत चीज इसके बारे में बोले। ये फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल का फाउंडर थे ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। His discovery of the triple helical structure of collagen published in 1954, and his analysis allowed confirmation of protein through the use of Ramchandran plot rank. Among the most outstanding contribution in structural biology, रामचंद्रन प्लॉट जो है, मतलब 90 ये कह रहे हैं कि इस ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर जो कॉलिजन जो पब्लिश हुआ था वो 1954 में। हिज एनालिसिस टू अलॉट, इसका जो एनालिसिस है, हिज एनालिसिस टू अलॉट कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन, एनालिसिस जो है कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन थ्रू द यूज ऑफ रामचंद्रन प्लॉट, रामचंद्रन प्लॉट के यूज पे। ठीक है। रैंक एमंग द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। ये बात मोस्ट आउटस्टैंडिंग पर्सन थे जो, मतलब कि रामचंद्रन जो थे वो मोस्ट आउटस्टैंडिंग पर्सन थे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए, ये बोला जा रहा है। He was born in 8 October 1922 in a small town not far from Cochin in southwestern coast of India. His father was a professor of mathematics. उनके पिताजी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। At the
local college and thus had considerable influence of shaping रामचंद्र को इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल ईयर उनके स्कूल ईयर खत्म हुआ उनके बाद रामचंद्रन ग्रेजुएट इन 1944-42 टॉप रैंकिंग स्टूडेंट इन बीएससी फिजिक्स कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से फिजिक्स का बीएससी कोर्स किए ही रिसीव्ड अ पीएचडी फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1944 में डिग्री लिए पीएचडी का while at Cambridge Ramchandran meet Linus Pauling was deeply influenced by his publication on models of alpha helix and beta zeta structure that directed his attention to solving the structure of collagen. He passed away at the age of 78. ये बोल रहे हैं कि कैम्ब्रिज में उनको एक मिलन हुआ किनसे रामचंद्र मिले लिनियस पॉलिंग नामक व्यक्ति से वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड हुए उनके पब्लिकेशन से अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट के ऊपर उनका पब्लिकेशन होगा दे डायरेक्टेड हिज अटेंशन सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन उनका अटेंशन चल गया स्ट्रक्चर कोलेजन के स्ट्रक्चर को सॉल्व करने पास्ट अवे एट द एज ऑफ 78 7 अप्रैल 2001 ठीक है अब चैप्टर 8 शुरू होता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अब इसमें है व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग सब दिखाई देता है यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग और व्हाट इज द इनएनिमेट थिंग दैट डज नॉट विच a living thing has. The answer of this question is the presence of basic unit of life, the cell in all living organism. इसमें कह रहा है कि क्या है मतलब कि लिविंग है और कोई चीज़ इनएनिमेट है कोई चीज़ जीवित है कोई चीज़ मरा हुआ मतलब निर्जीव है कह सकते हैं इस आंसर इसका बेसिक आंसर ये आता है कि सेल इज द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिक यूनिट सेल का सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट सेल ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल सारे ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड हैं सेल से मिलकर बने हुए हैं सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कुछ एक सेल का है उनको सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं व्हाइल अदर लाइक एस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर कुछ है जो ढेर सारे सेल से मिलकर बना होता है उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं व्हाट अब 8.1 टॉपिक है व्हाट इज सेल दिस इज क्वेश्चन इसका मतलब लिखा गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के और दूसरा में है परफॉर्म करता है इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ इसमें बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता एग्जिस्ट करने के लिए और दूसरा अपना खुद सारा काम जरूरी काम खुद कर सकता है एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग कोई भी स्ट्रक्चर सेल से छोटा होगा ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंटन वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सो एंड एंटन वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब ए लाइफ सेल एंटन वॉन लीवेनहॉक पहले थे व्यक्ति थे जो डिस्क्राइब किए लाइफ सेल को और देखे और डिस्क्राइब किए ठीक है एंटन वॉन लीवेनहॉक रॉबर्ट ब्राउन बाद में न्यूक्लियस का खोज करते हैं लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप जो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन है एंड इम्प्रूव लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ रिवील करता ऑल स्ट्रक्चर ऑल डिटेल ऑफ सारे स्ट्रक्चर जो सेल के रिलेटेड है उसको उसमें दिखाया जाएगा हम देखते हैं लोग सेल थ्योरी 8.2 टॉपिक है ठीक है इन 1838 मैथिस सेल्डन एक जर्मन बोटनिस्ट है मैथिस सेल्डन एक जर्मन बोटनिस्ट 1838 में एग्जामाइन करते हैं लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल ढेर सारे सेल मतलब प्लांट को देखते हैं और ये देखते हैं कि सारे जो सेल हैं प्लांट हैं वो अलग अलग प्रकार के सेल से बने हुए हैं विच टाइप ऑफ टिश्यू ऑफ दिस प्लांट एट अबाउट द सेम टाइम उसी समय पर थियोडर स्वान नामक कोई व्यक्ति थे जो 1839 में एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्ट दैट सेल हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के पास सेल एंड रिपोर्टेड सेल हैड ए थिन सेल के पास एक
पतला आउटर लेयर होता है जो आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। कंक्लूड दैट बेस्ड ऑन हिज स्टडी प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट से उसके उनके स्टडी में ये कंक्लूड होता है कि प्लांट टिश्यू जो है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का, मतलब सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस दैट द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। स्वान प्रपोज करते हैं एक हाइपोथेसिस जो कि बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट जो है कंपोज्ड है सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से, ठीक है। Sheldon and Swan together formulated cell theory. This theory, however, did not explain as how new cell are formed. ये theory explain नहीं करता कि नया सेल कैसे बनता है। रूडोल्फ वर्चो 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन करते हैं कि सेल डिवाइड एंड न्यू। रूडोल्फ वर्चो 1855 में पहला बार एक्सप्लेन करते हैं कि दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल डिवाइड करता है और न्यू सेल जो बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। ओमनस ओमनी सेल्ला ई सेल्ला। इसमें कहा गया कि रूडोल्फ वर्चो पहले मतलब सेल थ्योरी जो दिए थे सेल्डन एंड स्वान, वो ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा था कि नया सेल कैसे बनता है। रूडोल्फ वर्चो आए 1855 में, वो एक्सप्लेन करते हैं, पहली बार एक्सप्लेन कर रहे थे कि सेल डिवाइड करता है, न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम, सेल डिवाइड करता है और नया सेल जो बनता है वो पहले के सेल से प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। उसको एक फ्रेज में नेम भी दिया गया ओमनी सेलुला ई सेलुला। He modified the hypothesis of who modified the hypothesis of Sheldon and Swan to give the cell theory of finance। सेल थ्योरी अंडरस्टूड टुडे, आज कैसे सेल थ्योरी को समझा जाता है वो यहाँ 2 पॉइंट में लिखा गया। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बनकर हुए हैं और कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ। दूसरा ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सारे सेल पहले के सेल से प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हुए, ठीक है। 8.3 है an overview of cell. You have earlier observed that cell is an onion peel or human cheek. Cell understand the microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, which is typical plant cell, has a distinct cell wall and its outer boundary. Outer boundary. The onion cell, which is typically plant cell, has distinct cell wall होता है और उसके outer boundary. Just within the is the cell membrane. Cell of the human chick have an outer membrane as the delimiting structure of the cell। यहाँ बोला गया है कि एक अनियन सेल है जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सबसे बाहरी स्ट्रक्चर है सेल वॉल है, बाद में उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आया, फिर दूसरा नंबर पर है ह्यूमन चिक सेल, ये एनिमल सेल है। इसका आउटर मेम्ब्रेन है डिलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब कि सेल ऑफ ह्यूमन चिक है आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। Inside each cell, a dense membrane bound structure are called nucleus। हर एक सेल में एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है जो विच टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोट। सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है उसको यूकैरियोट कहते हैं, ठीक है। Whereas cells that lack a membrane-bound nucleus are prokaryote. In both prokaryote and eukaryote cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm. Both prokaryote and eukaryotic cell में एक semi-fluid matrix होता है, उसको cytoplasm कहते हैं। Occupies the volume of cell. Volume of cell को occupies करता है। Cytoplasm is the main arena of cellular activity in both plant and animal cell. Cytoplasm जो है main arena है cellular activity का both plant और animal cell। Various chemical reaction occur in to keep the cell is living state. Cell is in the living state. Beside the nucleus, ये कह रहा है कि साइटोप्लाज्म मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटी का इन बोथ प्लांट और एनिमल सेल। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर टू इट कीप सेल इन लिविंग स्टेट। थोड़ा सा लाइट बढ़ा देता ब्राइटनेस। Beside the nucleus, nucleus के अलावा the eukaryotic cell have other membrane-bound distinct structure called organelles like the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, vacuoles, and prokaryotic cell lack such membrane-bound. Prokaryotic cell lack करता है उस तरह membrane-bound organelle को
उसको कह रहा है कि यूकेरियोटिक सेल में ढेर सारा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोफाटी, वैक्यूल। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड, प्रोकैरियोटिक में सेल में ऐसा कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, फाउंड इन ऑल सेल, both eukaryotic as well as prokaryotic. Within the cell, ribosome are found not only in the cytoplasm. Ribosome are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast and mitochondria on the इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहा गया कि राइबोसोम जो है केवल साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाया जाता है। Animal cell contain another non-membrane bound organelle called centrosome which help in self division. एनिमल सेल में भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाया जाता है, सेंट्रोजोम, जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। सेल डिफरेंट डिफरेंट होता है ग्रेटली, शेप, साइज एंड एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में है माइकोप्लाज्मा का, वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 micrometer. The largest isolated single cell egg of an ostrich. Among multicellular organism, human red blood cell are about 7 micrometer in diameter. Nerve cell are some of the longest cell. Cell also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, covidal, thread-like, or even irregular. सेल का शेप बहुत प्रकार का हो सकता है, डिस्क लाइक हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलमनार हो सकता है, कोवाइडल हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, इवन कुछ रेगुलर भी हो सकता है। शेप ऑफ सेल वेरी विथ द फंक्शन दे परफॉर्म। अब हम 8.4 पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक से, ठीक है। Prokaryotic cell are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma, PPLO. PPLO का full form है Pleuropneumonia like organism. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell. ये बोल रहा है कि जनरली स्मॉलर होता है बट मल्टीप्लाई करता है यूकैरियोटिक सेल से तेजी से। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, वेरी कर सकता है शेप एंड साइज पे। देयर फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया, द बैसिलस, Coccus, Bacillus rod-like, Coccus spherical, Vibrio comma shape and Spirillum spiral. The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryote exhibit a wide variety of shape and function. ये बोला गया है कि ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट का फंडामेंटली सिमिलर है प्रोकैरियोट इवन दो प्रोकैरियोट एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है। ऑल प्रोकैरियोट हैव ए सेल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल, ऑल प्रोकैरियोट हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अलावा सारे प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन द साइटोप्लाज्म, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड, जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है, नॉट इनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बंद नहीं होता। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोजोम सर्कुलर, मेनी बैक्टीरिया सिंगल क्रोमोजोम सर्कुलर डीएनए इसमें पाया जाता है। जीनोमिक डीएनए सिंगल सर्कुलर क्रोमोजोम सर्कुलर। Many bacteria have a small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmid. Plasmid DNA confers certain unique phenotype character to such bacteria. Plasmid DNA confirm करता है certain unique phenotype character जैसे such bacteria. One such character is resistant to antibiotic. इन हाई, इसमें कह रहा है प्लाज्मिड जो करता है कुछ यूनिक फेनोटाइप कैरेक्टर होता है बैक्टीरिया में प्लाज्मिड डीएनए के कारण। जैसे पहला एक कैरेक्टर इसमें डिस्कस किया है रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंट होता है। इन हायर क्लास यू विल लर्न दैट द प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स. No organelles like ones in the eukaryotes are found in prokaryote cell except for ribosome. Prokaryote have something unique in the form of include.
प्रोकैरियोट में कुछ यूनिक होता है इंक्लूजन के फॉर्म में, समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotes. Prokaryotes का एक कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेल मेम्ब्रेन, स्पेशलाइज तरह के डिफ्रेंशिएट हो जाता है सेल मेम्ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर में इनफोल्डिंग हो जाता है, उसको मीजोजोम कहते हैं। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन 8.4.1। Most prokaryotic cell, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. ढेर सारा प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरियल सेल केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप है। द सेल इनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बॉन्ड थ्री लेयर स्ट्रक्चर दैट इज आउटर मोस्ट ग्लाइकोकाइलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले आउटर मोस्ट ग्लाइकोकाइलिक है, फिर सेल वॉल है एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Although each layer of the envelope perform distinct function, they act together as a single protective unit. ये सब जो है अलग अलग परफॉर्म करते हैं, अलग अलग फंक्शन, बट ये सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल। बैक्टीरिया को बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड, बैक्टीरिया को क्लासिफाइड कर सकते हैं दो ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल इम्यूनम एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाय ग्राम विच। ग्राम विच थे जो मतलब कि सेल बिना बैक्टीरिया को दो प्रकार में बांटे थे, एक ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम नेगेटिव। यह स्टेनिंग प्रोसीजर पर डिपेंड करता है। स्टेनिंग प्रोसीजर कुछ होता है जो कोई केमिकल वगैरह ऐसा होता है सेल में डाला जाता है, माइक्रोस्कोप में उसका कलर वगैरह कुछ दिखता है। ठीक है। द टेक अप द ग्राम स्टेन जो दिखाता है वो ग्राम पॉजिटिव एंड जो नहीं दिखाता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्लाइकोकाइलिक्स डिफर इन कंपोजिशन, ग्लाइकोकाइलिक्स अलग है कंपोजिशन में, थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। Glycocalyx differ in composition में and thickness among different bacteria. It could be loose sheath called slime layer. In some bite, it may be thick or tough called the capsule. A loose sheath हो सकता है उसको slime layer कहते हैं और एक tough होगा तो capsule होगा। The cell wall determine the shape of the cell and provide a strong structural support. सेल वॉल डिटरमाइन करता है शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड करता है एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग और कलेप्सिंग। सेल वॉल जो है डिटरमाइन करता है शेप को, शेप ऑफ सेल को एंड प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है जो बैक्टीरिया को फटने और कोलेप्स करने से बचाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है इन नेचर में एंड इंटरेक्ट करता है आउटसाइड वर्ल्ड, परमिएबल है नेचर में और इंटरेक्ट करता है आउटसाइड वर्ल्ड। This membrane is similar structure to that of the eukaryotes. A special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extinction of plasma membrane into the cell. एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है उसको मेसोजोम कहते हैं जो फॉर्म करता है एक्सटिंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर। दिस एक्सटिंक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, टिब्यूल एंड लेमिना। ये जो स्ट्रक्चर है वो तीन प्रकार में होता है, वेसिकल, टिब्यूल एंड लेमिना के फॉर्म। दे हेल्प इन सेल वॉल, हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन। मेसोजोम जो हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। दे आल्सो हेल्प इन रिस्पायरेशन, सेक्रेशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। या ये हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल में, सरफेस एरिया बढ़ाता है, रिस्पायरेशन कराता है, सेक्रेशन प्रोसेस में करता है, हेल्प करता है। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, सरफेस एरिया बनाता है और एंजाइमेटिक कंटेंट उससे बढ़ता है सरफेस एरिया पर। In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm called chromoplast with contain pigment. बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, बैक्टीरिया सेल मोटाइल हो सकता है और नॉन मोटाइल हो सकता है। ये इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस extinction from their cell wall called flagella. Bacteria show a range in the number and arrangement of cell. बैक्टीरिया मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकता है। यदि मोटाइल है तो इसमें फिलामेंटस एक्सटिंक्शन होता है और उसका सेल वॉल वो निकलता है उसके सेल वॉल से, उसको फ्लैजिला कहता है। बैक्टीरिया सो रेंज नंबर, फ्लैजिला जो है उसका रेंज नंबर रेंज में होता है नंबर, और अरेंजमेंट होता है फ्लैजिला का। बैक्टीरिया फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड वेसल बॉडी।
The filament is the longest filament is the longest portion of extent from the cell surface towards. Beside flagella के अलावा पिलाई और फिम्ब्राई are also surface structure of the bacteria. पिलाई एंड फिम्ब्राई भी एक surface structure है जो बैक्टीरिया का है. But do not play role in motility. पर ये मोटिलिटी में रोल प्ले नहीं करता. पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन. पिलाई जो है इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो स्पेशल प्रोटीन से बनता है. फिम्ब्रिन आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्पोर्टिंग आउट ऑफ द सेल. In some bacteria, they are known to help attach to bacteria rock on a stream and also to host tissue. सम बैक्टीरिया में नोन करते हैं अटैच टू बैक्टीरिया रॉक. फिम्ब्राई जो है स्मॉल ब्रिस्टल लाइक होता है, फाइबर स्पोर्टिंग आउट द सेल से बाहर फाइबर लाइक होता है. इन सम बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया में ये हेल्प करता है पत्थर वगैरह से चिपकने के लिए और होस्ट टिश्यू से चिपकने के लिए. राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी 8.4.2 राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी. In prokaryotes, ribosome are associated with plasma membrane of the cell. Prokaryotes में राइबोसोम एसोसिएटेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल से. दे आर 15 नैनोमीटर एंड 20 नैनोमीटर इन साइज. दे आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट 50s and 30s. Each vein present together from 70s. Prokaryotic ribosome are the site of protein synthesis. Several ribosomes may attach on single mRNA and form a chain called polyribosome and polysome. ढेर सारा राइबोसोम अटैच होता है सिंगल एमआरएनए से उस चैन को हम पोलिजोम या पोलीराइबोसोम कह सकते हैं. राइबोसोम ऑफ पोलिजोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन. Inclusion body. Inclusion body reserve material in prokaryotic cell are stored in the cytoplasm in the form of reserve material prokaryotic cell में stored होता है cytoplasm में inclusion body के रूप में. दे आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन. किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है. लाइफ इन द साइटोप्लाज्म किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है साइटोप्लाज्म. इसका एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफैसियल ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. तो ठीक है, आगे का और जो टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में लेते हैं. थैंक्स. देखिए अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिएगा. ठीक है, बाय.